Okay, one answer I have got. All will tell the answers जो जो names हैं part wise. So all right, I can see all of you who has given the answers for this one. That is right. We have already done this. A little bit different question based on projectile motion we will do. Yes. Now all of you
will do this one and let me know through the poll whoever has done this. Quickly, all will do. Only 10% I can see you all have done. Projectile motion may motion in a plane along X and along Y. You have to separate and combine. So, okay, I can see only 5 of you have attempted. None has given me the answer in the chat. जिनका हो गया है, whoever has marked in the poll, they should give me the answer in the chat. With what velocity V naught should a ball be projected horizontally from the top of tower? ये रहा top of tower. So that
द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज n टाइम्स h. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिस पॉइंट से फेंका उसके रेस्पेक्ट में क्या है, n इंटू h, वेर h इज द हाइट. इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्वेश्चन? वी डिड क्वेश्चंस लाइक दिस. यहां से फेंका, जस्ट अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट सेपरेट मोशन अलोंग x, मोशन अलोंग y, इसको सेपरेट कर दिया. इनिशियल वेलोसिटी क्या है अलोंग x? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x? इट्स गिवन भाई, ये दिया हुआ है v नॉट. v नॉट x डायरेक्शन में ही फेंका ना. देखो x और y कैसे होता है, इधर x इधर y. तो इधर हम अगर कुछ फेंके, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग x. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या है? दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. Displacement along y. What is the displacement along y? Ankit will tell us. Send me in the chat guys. Displacement along y क्या है? It's not h guys, it is minus h. Right, 180 newtons. Next. If we see the object here, तो इसका weight इधर लगेगा, right? Let us suppose 18 न्यूटन है, तो इसका weight होगा 180 न्यूटन. So जो point of projection है, that is what we consider it as origin. So displacement is minus h. With respect to this position, object नीचे आ गया. कितना distance है h? Along x-axis, we have to find the displacement, and that is given as eta times h. x-axis में देखो ये right direction में जा रहा है. यहाँ पे देखो ये right direction में. तो displace कितना हुआ? eta into h, और ये positive लेंगे. Acceleration is 0. Acceleration is minus g. अभी ये पैरामीटर में अगर किसी को दिक्कत है, that means it's not a point to consider that you have doubt in projectile. You actually have doubt in motion in 1D. Okay, so continuing from here, just relate them. जो time होगा वो equal होगा दोनों में. Is this understood now guys कि parameters ये क्यों होगा हमारा? Okay, so relate them. Along y, displacement is equal to ut plus half at square. So minus g by 2 t square. ये एक इक्वेशन है. h is equal to g by 2 t squared. वैसे ही यहां पर displacement is equal to u into t. So n h is equal to v naught into t. So what you have to find? You have to find velocity v naught. तो यहां से t का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, because t is the variable which we have considered. So we have to remove that. So t will be eta h by v naught. और इस t को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. क्या मिलेगा? h is equal to g by 2 into
ईटा स्क्वायर्ड एच स्क्वायर्ड बाय वी नॉट स्क्वायर्ड। सो यहां से हमें वी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, ये एच और एच कैंसिल हो गया, वी नॉट स्क्वायर्ड विल बी ईटा स्क्वायर एच जी बाई टू। तो यहाँ पे सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा वी नॉट एस ईटा रूट एच जी बाई टू। सो विद दिस वेलोसिटी इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्लियर है, दैट इज ईटा रूट जी एच बाई टू। नंबर 2, ऑल्सो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। स्पीड निकालना है। तो अब इस वेलोसिटी वी नॉट को कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम कंसिडर करेंगे ईटा रूट जी एच बाई टू। सो यू हैव टू फाइंड द स्पीड विथ विच बॉल रीचेस द ग्राउंड। तो बॉल जो नीचे हिट करता है इट हैज टू कंपोनेंट, एक तो y के अलोंग वेलोसिटी होगा, v इक्वल्स u प्लस at लगाएंगे, so okay we have displacement, we will use v square minus u square equals to 2as। so displacement और ये velocities का relation लगाते हैं, so we will get here v square minus 0 square is equal to 2 into a into displacement क्या है minus h। तो यहाँ पे v मिल गया प्लस माइनस रूट टू जी एच। यहां पर v क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स v तो सेम रहेगा बिकॉज देर इज नो एक्सीलरेशन। तो यहां से वेलोसिटी क्या मिलता है हमें, वेलोसिटी वेक्टर इज ईटा रूट एच जी बाई टू, ये आई कैप के अलोंग। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कैसा लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा, माइनस वाई आई एम राइटिंग बिकॉज वी नो कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा एक एक्स कंपोनेंट का इधर होगा और एक वाई कंपोनेंट का नीचे की तरफ होगा, राइट। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द स्पीड। तो स्पीड कैसे निकलेगा, इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी रूट ऑफ दिस स्क्वायर दैट इज ईटा स्क्वायर एच जी बाई टू प्लस दिस स्क्वायर दैट इज टू जी एच। तो ये मिलेगा रूट ऑफ 4gh प्लस ईटा स्क्वायर जी एच बाई टू, राइट। सो दिस विल बी आवर स्पीड। जिनको नोट करना है वो नोट कर ले, बट इसमें नोट करने की कोई चीज नहीं है, दिस इज ऑल कॉन्सेप्चुअल। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था मैं प्रोजेक्टाइल से। ये सबको समझ में आया गाइस, देन वी विल डू अनदर क्वेश्चन। सभी को समझ में आना चाहिए ये। All right, good. So all understood. Let us do another one. Let's do this one.
ये जल्दी करेंगे. So whoever will be done, they will let me know. And give me the answer in the chat. जल्दी करेंगे गाइस, आज हम प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करना है एनीवेज. जल्दी जल्दी इसको करेंगे. Two guns situated on the top of a hill of height 10 meters fire one shot each with the same speed 5√3 at some interval of time. One gun fires horizontally and the other fires upwards at an angle of 60 with the horizontal. The shots collide in air at point P. So दो गन है, एक को कैसे शॉट किया? हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड. और दूसरे को कैसे शॉट किया? एट एन एंगल 60 डिग्री, सेम 10 मीटर के हाइट से ही, एट एन एंगल 60 डिग्री और स्पीड 5√3. एंड इट सेज द शॉट्स कोलाइड इन एयर एट पॉइंट पी. कहीं पर ये कोलाइड होता है. तो ये जो होगा पहला वाला पार्टिकल, वो कुछ उसका पाथ ऐसा रहेगा. सेकेंड वाला पार्टिकल हो सकता है उसका पाथ कुछ ऐसा हो. सो यहां पर हो सकता है कोलाइड करे. राइट. अब अगर कोलाइड कर रहा है, दैट मीन्स जितने टाइम में ये यहां पर आएगा, उतने टाइम में ये शॉट भी यहां पर आएगा. सो इन सेम टाइम फाइंड आउट दैट टाइम इंटरवल. तो दोनों केसेस में टाइम सेम होगा.
Okay, one answer I can see. Yes, Renuka, I can see your answer. बाकी सभी भी करेंगे. बेसिक आइडिया तो पता चल गया यहाँ पर कि क्या है. टाइम सेम लगेगा. जितने टाइम में ये यहां से यहां आएगा उतने ही टाइम में ये वाला शॉट यहां से आएगा. देन ओनली दे विल कोलाइड, है ना, क्योंकि इसको साथ में छोड़ा है यहां से. So let us say this is first projectile. Let us say किसी पॉइंट P तक आने के लिए अगर इसमें टाइम T लगता है, so how much distance it has traveled. जो डिस्प्लेसमेंट होगा along y and along x, can we say that those displacements are same for both these projectiles, right? दोनों इनिशियल पॉइंट से सेम फाइनल पॉइंट आ रहा है, मतलब उसका x और y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा, राइट? तो पहला एक काम करते हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग x लिख देते हैं और मोशन अलोंग y लिख देते हैं. फिर ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का, ये जो सेकेंड प्रोजेक्टाइल ऊपर वाला है जिसको एंगल पे छोड़ा है हमने, उसका मोशन अलोंग x और मोशन अलोंग y कर देते हैं. वी आर जस्ट सीइंग कि क्या हो सकता है. देखो, व्हाट आई एम फॉलोइंग एंड इवन आई एम टेलिंग यू ऑल टू फॉलो दैट. मैं क्या किया, क्वेश्चन में जो डेटा है ना उसको पहले रिप्रेजेंट किया और ये पहचान लिया कि दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन. तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अलोंग एक्स अलोंग वाई उसको सेपरेट करके यूज करूंगा आइडिया. तो पहला प्रोजेक्टाइल जो वेलोसिटी है वो एक्स में ही है बिकॉज इट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली. सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 5√3. अलोंग वाई इसमें 0 होगा. इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 5√3 cos 60. दैट मीन्स 5√3/2. राइट, दिस इज अंडरस्टूड नाउ. इनिशियल वेलोसिटीज लिख दिया. अब इसका हम x निकालेंगे. x मीन्स डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y और दोनों का डिस्प्लेसमेंट x और y. इस केस में इसका x और इसका x सेम रहेगा, इसका y और इसका y सेम रहेगा. दोनों पार्टिकल का x और y में डिस्प्लेसमेंट दे आर सेम. दैट आइडिया ओनली वी आर गोइंग टू यूज. अच्छा, टाइम भी सेम रहेगा, राइट? टाइम पूरा सेम रहेगा, इस केसेस में भी टाइम t रहेगा. अच्छा, एक्सीलरेशन भी चलो लिख लेते हैं. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -10 है. नाउ लेट अस ट्राई टू जस्ट कनेक्ट देम. यहां तक देखो, जिनको समझ में आया उनको पूरा क्वेश्चन अब बन जाएगा उनसे. अभी हम क्या करेंगे, बस इक्वेशन यूज करेंगे. डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है इनिशियल, एक्सीलरेशन है, टाइम है, कनेक्ट कर दो. s इज इक्वल टू यू टी, मतलब 5√3 इंटू टी प्लस हाफ a t² कैंसिल हो गया बिकॉज एक्सीलरेशन इज 0. वैसे ही y में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ये वाला नेगेटिव होगा, राइट? नेगेटिव होगा ना, क्योंकि y में हम नीचे जा रहे हैं, x में हम राइट में जा रहे हैं. सो y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ a t², 5t². तो y मिल गया यहां से 5t².
तो अभी तक हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है। एटलीस्ट कितने एक्सप्रेशन चाहिए? 3, बिकॉज वी हैव एक्स वाई एंड टी एज द अननोन विच वी हैव टेकन। वैसे यहां पे कनेक्ट कर दो, एक्स क्या आ जाएगा? u इंटू टी, 5√3/2 इंटू टी। यहां पर y देखो, y क्या होगा? -y इज इक्वल टू u इंटू टी, -5t²। All right, just solve them now. We must get the result. Okay, one thing we have to focus here, guys. यहाँ पर जो question है, that says us to find the time interval between the firings. तो ये अगर सेम टाइम पे छोड़ा तो सेम, yes, just 1 minute, just 1 minute, I'll be back. It's just an important call. Yeah, I'll call later on. All right. तो ये जो है अगर सेम टाइम पे छोड़ा तो सेम टाइम पे मिलेगा, राइट? बट एट सम इंटरवल ऑफ टाइम, ये हमें फोकस करना चाहिए था। मींस डेफिनेटली इसका जो टाइम होगा वो हो सकता है ज्यादा हो और ये कम टाइम में यहां आ जाए, मतलब इसको पहले फायर किया और इसको बाद में फायर किया, ये कंडीशन है। तो टाइम डिफरेंस निकालेंगे, मतलब ये T1 होगा और ये T2 होगा, राइट? नाउ वी विल जस्ट सॉल्व देम। हमारे पास वेरिएबल्स कितने आ गए? एक्स वाई T1 T2, 4 वेरिएबल्स। देखो 4 इक्वेशन, क्या हम T1 और T2 निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड आउट। तो पहले तो x को इक्वेट कर दो, तो हमें मिलेगा 5√3t इज इक्वल टू, देखो 5√3t2 इज इक्वल टू 5√3/2 इंटू T1। तो यहां से हमें क्या मिल गया? T1 इज इक्वल टू 2t2। अब y को इक्वेट करो, y को इक्वेट करने पे क्या मिलेगा हमें? 5t2² इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस, राइट? यहाँ पे -y करना है, माइनस इज इक्वल टू 15/2t1 -5t1²। चलो 5 से काट देते हैं, तो मिलेगा -t2² इज इक्वल टू 3t1/2 -t1²। यस, जस्ट 1 minute, just 1 minute.
ओके, तो पार्ट 1 के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए था। बस इसको सॉल्व करेंगे और 1/√3 सेकेंड्स निकल जाएगा। सो दिस सॉल्विंग पार्ट आई लीव इट अप टू यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो। क्वेश्चन का जो मेन कंटेंट है वो यहीं तक है, right? So once you get all the 4 equations, you solve to get T1 and T2 and subtract them to get the time interval. Now number 2 all will do. जल्दी जल्दी सेकंड पार्ट करेंगे सभी कोई।
So I can see some of the answers 5 or 10/3. अच्छा 5 और 5/3 कोऑर्डिनेट्स. अच्छा ये सॉल्व भी कर लेते हैं इस इक्वेशन को. लेट अस सॉल्व इट बिकॉज वी रिक्वायर T1 एंड T2. यहाँ पर T1 के जगह आई विल पुट T2. सो T1 इज 2T2. सो लेट मी पुट हियर. इक्वेशन क्या मिला? -T2 squared is equal to 3/2 into T1, that is 2T2 minus T1 squared, so -4T2 squared. तो यहां से एक T2 निकल गया. So we get -T2 equals to 3 minus 4T2. So from here we get 3T2 is equal to 3. तो T2 हमें मिला 1. T2 1 मिला तो T1 क्या मिला? 2 into 1, that is 2 seconds. Is this clear to all? Time difference अब निकल जाएगा. T1 minus T2, that is 2 minus 1, that is 1 second. Part 2, ये याद रखेंगे. T2 कितना मिला? 1 second और T1 मिला 2 seconds. That clearly shows कि इसको यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उससे ज्यादा इसको यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. क्या है कोऑर्डिनेट P पॉइंट का? X और Y. What is X and Y? The displacement along X-axis and displacement along Y. So any of the equations you can consider इन चारों में से. Let us say मैं ये consider कर लिया. T2 कितना है हमारे पास? 1 second. तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5√3 into T2, that is 1. तो X हो गया 5√3. Y क्या हो गया? 5. So the coordinates that we will get is 5√3 and 5. Let us check. The coordinates of point P. Take origin of coordinate system. अच्छा, we have to take the origin of system at the foot of the hill. है ना, यहाँ पे origin लेंगे तो हमारा ये coordinate होगा, right? So here we have to consider this as the origin. तो इसको origin में रख के हमें क्या मिलेगा? Coordinate that we have to find. तो along x axis, along y axis क्या होगा? ये 10 है टोटल और ये हमने 5 लिया. So along y coordinate our point will be -5, right? और एक 10/3. T2 is 1 second. 5√3 and then 5. अच्छा ये 5T2 squared, that is 1. And here if we take T1, that is T1 is 2. यहाँ पर अगर रखें so we'll get 5√3. Okay, so with respect to this origin point we are getting this 5√3, 5. इसको origin में रख के हम कोऑर्डिनेट उस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं. So is this understood to all? Just the calculation was too much being involved here, but the concept was really simple. हमने वही किया x और y के along, उसको सेपरेट करके बस 3-4 इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया. So the last question from level 3 in this projectile. So quickly all will do this.
Quickly, all will do this one. This is the last question for the day. So an object A is kept fixed at point x is equal to 3. So here it is fixed. And y is equal to 1.25. Right? So object is fixed here. At time t equal to 0, the plank starts moving along the positive x direction with an acceleration 1.5 meter per second square. So this starts moving along x direction at acceleration 1.5. At the same instant, a stone is projected from the origin with velocity u as shown here. Stationary person on the ground observes the stone hitting the object, during which it makes a downward motion at an angle of 45 degree to the horizontal. So after some point, what will happen? This part, so somewhere it will be, and the stone is hitting at angle 45 degree. That means this angle is 45 degree. This is the situation. So all these motions are along x and y. We have to find initial velocity vector and the time after which the stone hits the object. So whatever time we are going to find, that time will be constant for both the objects moving. Both the objects as in one the plank and another the stone which is fired from the ground. So let us make the situation here. Complete situation we will make.
ये पहले यहाँ था, लेट अस से आफ्टर टी टाइम ये यहाँ पर आ गया, जो स्टोन हमने फेंका वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आया, right? So this stone is hitting at this point. This is the real diagram, and considering the speed, इसका speed क्या है u. Let us take the angle to be theta, and उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है 45 डिग्री एट दिस पॉइंट. तो इस स्टोन को यहां से लेके फ्रॉम O टू Q, O टू B, स्टोन को O से B तक आने के लिए कितना टाइम लगा, T टाइम. तो वैसे ही प्लैंक को A से B तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, T टाइम ही लगेगा. देन ओनली इट विल हिट दैट. 45 डिग्री है, दैट मीन्स द स्पीड, इसका इनिशियल स्पीड क्या है u cos थीटा. दिस u cos थीटा विल बी कांस्टेंट एट ऑल प्लेस. तो यहां पर भी क्या होगा u cos थीटा. एंड ये किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है 1.5. So if the angle is 45, that means horizontal and vertical component of velocity they are equal. मतलब इस पॉइंट पे इधर क्या है velocity, u cos theta ही है, right? Because if we have 45, tan 45 is 1. Now let us take the points into consideration. So let us take the points into consideration and let us relate all the given parameters here. So this one, let us say यहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, that means x डिस्टेंस ये राइट कितना गया x डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हो गया y. So this is for the stone. तो स्टोन का फिर से मोशन अलोंग x एंड मोशन अलोंग y. सो मोशन अलोंग x, स्टोन का मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है अलोंग x ही है, अलोंग y क्या है y ही है, एक्सीलरेशन 0 है, इसका एक्सीलरेशन -10 है. एंड व्हाट एल्स वी हैव, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, इसका इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, राइट, इनिशियल पॉइंट पे. फाइनल इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू u cos थीटा, और y डायरेक्शन में भी v क्या है u cos थीटा ही है, बिकॉज एंगल इज 45. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोन. नाउ वी टॉक अबाउट द प्लैंक. प्लैंक का मोमेंट अलोंग, मोशन अलोंग x एंड मोशन अलोंग y. तो x के अलोंग डिस्टेंस क्या है y का, दिस प्लैंक का, प्लैंक यहां से यहां आया, दैट मीन्स ये है डिस्टेंस y, और ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है हमारे पास 3, राइट, इट्स गिवन 3. सो ये प्लैंक कितना ट्रेवल किया y-3. भाई y थोड़ी है, ये तो x है, ये x है, राइट, अलोंग x. सो x-3, that will be the displacement along x. y के अलोंग 0 डिस्प्लेसमेंट है प्लैंक का, राइट, प्लैंक इसी लेवल पे मूव कर रहा है स्ट्रेट. एक्सीलरेशन अलोंग y क्या है -10 है, अलोंग x क्या है यहाँ पर एक्सीलरेशन 1.5. दिस इज गिवन, ऑब्जेक्ट x के डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है. एंड व्हाट एल्स वी हैव, टाइम यहाँ पर जो लगेगा वही टाइम यहाँ पर लगेगा, राइट, देन ओनली इट विल बी एबल टू हिट द प्लैंक. Other than this was stationary. It says this starts moving, right, stone is projected and the plank starts moving along positive x direction. So initial velocity अगर ये start कर रहा है move करना, so its initial velocity will be 0 along x and y. So yes, you have all the parameters now, you can connect them. यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा,
यहाँ से एक इक्वेशन आएगा और यहाँ से एक इक्वेशन आएगा. We will get 4 equations, and those 4 equations, if we are able to solve, then finally we can find out t. और u भी मिल जाएगा. u भी एक वेरिएबल है. जैसे एक इक्वेशन देख ले, इसमें s है, a है, u है और v है और t. इसको रिलेट करना है. कैसे रिलेट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम. ये एक इक्वेशन आ गया. अच्छा, x और y इस केसेस में सेम रहेंगे, राइट? बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y, with respect to x and y only, we have dealt with all other things. Is this clear to all? ओके. सो जिनको भी इसमें डाउट है, इस प्रॉब्लम में, या फिर थोड़ा भी दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट यू ऑल विल अटेम्प्ट इस प्रोजेक्टाइल मोशन का होमवर्क पार्ट. तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का होमवर्क पार्ट करेंगे, दैट इज पॉइंट 2, एंड देन लेवल 3 का ये लास्ट प्रॉब्लम, और फिर लेवल 3 का लास्ट प्रॉब्लम पिछले पॉइंट 1 से भी. We will be doing this in the next class. Okay, but before that it is necessary कि हम ये होमवर्क पार्ट करें. All right, so today we have finished projectile motion. In the next class on Monday you will complete the homework part, और जो पेंडिंग है पॉइंट 1 के वो भी कंप्लीट करेंगे. So we will see point 2 discussion of module, and then we will go through Kahoot quiz, है ना? छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेंगे Kahoot quiz से. एंड आफ्टर दैट लेवल 3 के प्रॉब्लम्स, एक एक प्रॉब्लम ही टफ थे लेवल 3 के, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के प्रॉब्लम्स हम फिर से देखेंगे. सो नो नीड टू वरी अगर ये लास्ट वाला में दिक्कत भी हुआ तो. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि हम होमवर्क करके फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे लेवल 3 का. All right, everyone, let us then meet on Monday and let us carry our discussion. Chalo, see you all on Monday. Bye bye.